अगर आपको भी मेरी तरह इंग्लिश सीखनी है तो बस प्रैक्टिस करिए मेरी तरह, वीडियो अपलोड करिए। यू शुड स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएटिंग। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि मुझे कोई अटेंशन ग्रैब करने को मिले, जिससे क्या है, अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ तो मैं अपनी वीडियो को खुद देख सकूँ, क्योंकि हर जगह मेरी टॉपिक याद मेरे साथ नहीं आएंगी। दूसरा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, कैमरे के सामने हूँ, तो उससे क्या है, मेरी आँख, मुझे मेरे दिमाग को लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ दूसरे के सामने, तो हमारे उससे ब्रेन तक एक मैसेज जाता है जिससे कि हम बाहर भीड़ में बात कर सकते हैं। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये दिस इज़ द मेन रीज़न एंड अदर इज़ नथिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। दिस इज डे 15 of 100 day challenge. Now I will learn the part of models. One of the best model is should. Then in this video I will learn and practicing about should. So let's get start. अगर आपको भी मेरी तरह सीखनी है तो आप भी मेरा तरीका अपनाइए एंड यू कैन लर्न easily English in 100 days, in 100 videos. Thank you. Now this is daily practice sentence. And the usage of should. Then usage of should is used for advice and duty. This is a structure of sentence of should, subject plus should plus verb first form plus object. Then this is sentence practice. Firstly, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। You should rest now. लोगों को ईमानदारी रखनी चाहिए। People should honestly. तुम्हें अपने दोस्तों को मिलना चाहिए। You should meet your friends. हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। We should thankful to him. आपको संगीत सीखना चाहिए। You should learn music. हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। Every person should study. हमें समय मैनेज करना चाहिए। We should manage the time. हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। We should go to school daily. आपको फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए। You should not listen फिल्मी सॉन्ग। क्या आपके पास किताबें होना चाहिए? Should you have books? क्या बच्चों के पास खिलौने होने चाहिए? Should children have toys? Now this is the second one of the model, but it is the part of have. The should have is used for past and the Hindi meaning of should have is चाहिए था. Now this is the structure and this is a sentence. Now तुम्हें कार चलानी चाहिए थी। No, तो तुम्हें you should subject to according to structure you should चलानी, then you should have verb की third form तो drive, and third form is drive, and you should have driven the car. तुम्हें तेज भागना चाहिए था। You should have run fast. हमें खाना खाना चाहिए था। You should have eaten food. We should have eaten food. आपको उससे मिलना चाहिए था। You should have met them. You should have meet him. उसे कोशिश करनी चाहिए थी। He should have
Suddenly my PC has stopped, so the video recording is off, and then is again I start on this. Please continue. उसे कोशिश करनी चाहिए थी. He should have tried. तुम्हें उसे बताना नहीं चाहिए था. You should have not told him. उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी. He should not have driven the vehicle. उसे तुम्हारी सलाह सुननी चाहिए थी. He should have listened. He should have listened your advice. उसे सही समय पर पहुंचना चाहिए था. He should have reached on right time. क्या हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी? Should we have not लड़ाई तो फाइट. क्या हमें चोर को पकड़ लेना चाहिए था? Should we have caught the thief. उसे दवाइयाँ समय पर लेनी चाहिए थी. He should have taken medicine on the right time. Now this is a past form of should have, and now this is a second use of should have. Should have use पास होना चाहिए. इधर हिंदी में नहीं, पास होना चाहिए. This should have. Now this is practice. For example, उसके पास किताब होना चाहिए. So he should have books. उनके पास मोबाइल होना चाहिए. He should have मोबाइल. मेरे पास नौकरी होनी चाहिए. I should have job. This is the I receive. उनके पास माइक्रोफोन होना चाहिए. He should have microphone. क्या हमारे पास कार होनी चाहिए? Should we have car? Should we have car? And now this is a second round. Now practice. This is उसे सही तरीके से जवाब देना चाहिए था. He should have तरीका मतलब he should have best time. He should have right time तरीका जवाब देना चाहिए था. He should have best way to answer him. तुम्हें सही समय पर रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी. You should have sent the report on right time. उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी. He should have चिंता. Now this is चिंता में उसे अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी. He should have stress on health. हमें अपने खर्चों पर नियंत्रित क्यों रखना चाहिए? We should have नियंत्रित मतलब सॉरी I am not remembering. हमें अपने खर्चों पर नियंत्रित क्यों रखना चाहिए? तो why should we have controlled our expensive खर्चे? देन उसे वक्त पर स्कूल पहुंचना चाहिए था. He should have reached on a time.
उसे समय पर अभ्यास करना चाहिए था। ही शुड हैव प्रैक्टिस्ड ऑन राइट टाइम। उसे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था। ही शुड हैव थॉट ऑन करियर, अबाउट करियर। ही शुड हैव थॉट अबाउट करियर। हमें हर दिन कुछ नया सिखाना चाहिए। हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। वी शुड हैव लर्नड वी शुड हैव समथिंग न्यू लर्न। तुम्हें हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए। यू शुड हैव काम को समय पूरा करना चाहिए। एडवाइस तो यू शुड समय पर, यू शुड हैव वर्क, यू शुड हैव वर्कड ऑन राइट टाइम। क्या तुम्हें व्यायाम करना चाहिए? शुड यू रेस्ट? नाउ दिस इज अ टाइम टू क्वेश्चन आंसर दिस अराउंड द इन दिस वीडियो। मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए रखे हैं कि इससे हमारी प्रैक्टिस, हमारी वोकैबुलरी एंड हमारी कम्युनिकेशन स्किल एंड हमारे जवाब देने के जो हमारे क्या बोलते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं वो इंट्रोवर्ट निकले। व्हाट शुड स्टूडेंट हैव? स्टूडेंट पास क्या होना चाहिए? स्टूडेंट शुड हैव फर्स्टली बुक, फर्स्टली student should have books, pen, pencil, and that is knowledge. Knowledge is important. Should we help towards? क्या हमने गरीबों की मदद करनी चाहिए? We should help poor because poor people is very poor from money. They have no money to eat food and living life. What should have done before having food? What should have done? क्या बस चाहिए खाने से पहले? You should have done before having food is wash hand your properly. Should you earn money? Yes, you should earn money because money is important. Money is not important, but lot of money is important, and in this world money is necessary for living life. Which mobile should we have? We should have Samsung mobile. Now it is the end of question practice. Now third round is paragraph practice. तुम्हें हर दिन जल्दी उठना चाहिए। You should wake up every day. You should have wake up every day. इससे तुम्हें पूरा दिन काम करने का समय मिलता है। इससे तुम्हें पूरा दिन काम करने का समय मिलता है। एंड दिस यू शुड हैव, इससे तुम्हें पूरा दिन काम करने का समय मिलता है। फॉर दिस यू शुड मिलता है, तुम्हें पूरा दिन काम, इससे तुम्हें फॉर दिस तुम्हें पूरा दिन काम करने के लिए है। यू तुम्हें पूरा दिन, तो यू हैव फुल डे फॉर डूइंग वर्क। अच्छा, समय मिलता है तो यू शुड हैव टाइम, सॉरी यू गिव टाइम फॉर डूइंग वर्क एवरी फुल डे। तुम्हें नाश्ते में पौष्टिक खाना चाहिए। यू शुड ईट, यू शुड हैव ब्रेकफास्ट इन हेल्थी फूड।
ऑफ हेल्दी फूड, यह तुम्हारी ऊर्जा बनाए रखेगा। दिस 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 हेल्प टू यू यू विल एनर्जेटिक, यू विल फील एनर्जेटिक। तुम्हें स्कूल या काम पर समय पर जाना चाहिए। यू शुड गो, जाना चाहिए, तुम्हें स्कूल या काम पर समय पर जाना चाहिए। यू शुड गो स्कूल एंड ऑफिस ऑन राइट टाइम। पूरी नींद ले सको, ताकि तुम पूरी नींद ले सको। बिकॉज यू ले सको, यू शुड, सॉरी, यू हैव टेक फुल स्लीप। इन आदत को अपनाने से दिस दिस हैबिट टू फॉलो, यू फील बेटर, यू विल फील मोर एनर्जेटिक एंड बेटर। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक थी और मैं अभी साथ में मेरे पास आई कि साथ में कुछ हेल्प करने के लिए मेरे पास हेल्प नहीं है जिससे मैं साथ के साथ ही सॉल्व कर सकूं, तो उसके लिए सॉरी। पर थोड़ी थोड़ी गलती है, सही मैं धीरे धीरे सुधार करूँगा। ये था हमारा डे 15 का, ये वो हमने पूरा कर लिया है। मिलते हैं डे 16 में। थैंक यू। अगर आपको भी मेरी तरह इंग्लिश सीखनी है तो बस प्रैक्टिस करिए, मेरी तरह वीडियो अपलोड करिए। यू शुड स्टार्ट अ कंटेंट क्रिएटिंग। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि मुझे कोई अटेंशन ग्रैब करने को मिले, जिससे क्या है, अगर मैं कुछ चीज़ भूल जाता हूँ तो मैं अपनी वीडियो को खुद देख सकूँ, क्योंकि हर जगह मेरी टॉपिक याद मेरे साथ नहीं आएंगी। दूसरा कि मैं वीडियो बनाता हूँ कैमरे के सामने हूँ, तो उससे क्या है, मेरी आँख, मुझे मेरे दिमाग को लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ दूसरे के सामने, तो हमारे उससे ब्रेन तक एक मैसेज जाता है जिससे कि हम बाहर भीड़ में ही बात कर सकते हैं। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये दिस इज़ द मेन रीज़न एंड अदर इज़ नथिंग।